Hello everyone, welcome to Share Market with KD. And today we would be talking about everyone's favorite derivatives. So, initially, derivatives are a type of contracts that determine their value depending on their underlying. So, without getting into any kind of theory, we'll get directly on the point, like what's in it for y'all. Okay, so we would be focusing on mainly two types of derivatives: futures and options. These are the derivatives that you can trade on in Indian exchange. Retail traders like you and me can trade these futures and options. There are other derivatives, forwards, swaps, etc., but probably we don't have anything to do with it, like not for retail traders, at least not in India. So amongst future and option, today we will be focusing on futures. Futures are a type of contract which have got three elements. There is a fixed maturity date or expiry date. There is quantity, which is also fixed, determined. And then there is underlying. Underlying, matlab, it's the thing on which the contract is based. Underlying can be anything. It can be stocks, it can be index, it can be commodities, it can be currencies. Just a minute. So basically, when you say you bought a future, means you have entered into a contract, an agreement of buying something on a future date in a fixed determined quantity. For example, if you enter into a future contract of Nifty, for example, if you buy a Nifty future, so what that means is you have entered into a contract of buying 75 quantity of Nifty for a particular price at which you entered on the expiry day of that contract. If you buy a contract, it is a long position on underlying. If you sell a contract, that is a short position on underlying. So as an example, if you buy a 30th April Nifty future, what that means is that you promise to buy Nifty at rupees 9,000 on 30th April, assuming that 9,000 is the current market price for that contract. It can be anything. It can be gold. If you enter into a gold contract, maybe May expiry, if you enter it for 45,000, that is, you promise to buy gold for rupees 45,000, 100 quantity. One quantity is 10 kg, so 100 quantity is what, 1 kilo. 1 kilo gold at 45,000 per 10 gram on the expiry day. This is what basically buying a future means. Similarly, if you sell a future, that is, you short a future on gold probably, that means that you agree to sell 1 kg of gold at 45,000 each, 45,000 for 10 grams each on that particular day. This is what futures mean basically. Now, coming back to our example, assuming that you have bought a Nifty 30th April future at rupees 9,000, you don't have to wait for the contract to expire on 30th April. You can, it is traded, futures are traded like as if you have bought Nifty only. Like a Reliance future would be traded like as if you have got Reliance stock itself. Just that quantity is predetermined and the contract is valid till 30th April only. After that contract has got no value, you need to buy another contract. So assuming
that you have bought a Nifty contract at 9,000. The quantity for Nifty is 75. Who decides this quantity? This quantity is decided by the exchange. So once you've entered into this contract at 9,000, that doesn't mean you have to wait for the expiry day. This contract is traded continuously in the market, just like any stock, or just like the price of index changes every minute. Price of this future contract also changes every minute. So assuming again that you have bought Nifty future at 9,000 on 15th April. On 16th April, you come into the market, you open your terminal and you see, well, today the price of Nifty future is 9,200, and I'm happy that I've made some profits and I want to get out of it. So you can sell your contract on 16th April. No need to wait till expiry. Just like you bought it through your broker, you can sell it through your broker. You can get out of the position. You can book that 200 as your profit. And what profit you will be making is 200 into 75. So the profit you will be making is 15,000. Now, one of the most interesting things about futures is that you can sell futures without owning them. If you want to sell a share, if you want to sell share of, for example, Maruti, you need to first own it and then you can sell. But what if you think that the prices of Maruti are going to fall and you don't own the share? You want to benefit from the fall of price. What you will do is you will sell the future contract of Maruti. That is, you will sell futures on Maruti. And as the price of Maruti stock falls, the price of futures will also fall in tandem. And you can make profit out of it by buying that contract on a later date. So, for example, you can short Nifty if you think that probably Nifty's price is going to fall from this point onwards. So, coming back to our example, maybe you can short a future contract at 9,000 rupees on 15th April. Then you come back to the market on 16th April. You see, oh my god, price have shoot up 9,200. I'm making losses. Probably Nifty can go to 10,000. This is just an example. I don't know if it can go to 10,000 or not. So what you do is you want to get out of the contract. Go to your terminal, buy back the contract. When you have already sold, buy back the contract. And the contract is settled. You book your loss, 200, 75 is the fixed quantity, 15,000 is your loss. Now you decide that I want to trade on futures. I want to do the buying and selling of futures. What do you need? First thing you need is a brokerage account with FNO enabled in it. Many a times when you open a brokerage account, they don't have FNO enabled by default. Most of the discount brokers do, but sometimes the full-time brokers don't. So you need to make sure that FNO segment is enabled in your brokerage account. And after that, you require something called as margin. Now, what is margin? Margin is amount that is placed with broker as security for trading in a future contract. Okay? You need to deposit some money with it, with your broker as a guarantee, so that you can trade a future contract. And this margin is there for every future contract. Like for one quantity there would be X margin, for two quantity there would be 2X margin, for Nifty futures there would be different margin, for Bank Nifty futures a different margin, gold futures a different margin, etc, etc. This margin is again determined by the exchange and broker, both. So what margin offers to you? What is the whole benefit of trading futures? First thing is that futures allow you to short sell. जो आप लोग stocks में नहीं कर सकते. You cannot sell a stock without buying it first. Futures allow you to do that. मतलब आपको प्राइस गिरने से अगर पैसा बनाना है, वो सिर्फ फ्यूचर्स में बनेगा, वो स्टॉक्स में नहीं बना सकते. ये पहला फायदा है.
दूसरा फ़ायदा, फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा लीवरेज मिलता है आपको। ये फ़ायदा है या नुकसान है, इट्स प्रॉफिट और लॉस, इट्स डिबेटेबल। फिलहाल हम फ़ायदा गिनते हैं इसको। So when you buy a future contract, for example, if you buy a Nifty future at 9,000, उसकी क्वांटिटी 75 है। अब ये क्वांटिटी किसकी क्या है ये आप आपके ब्रोकर के पास देख सकते हो। प्रॉबेबली मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हर एक स्टॉक की या हर एक कमोडिटी के फ्यूचर्स की क्वांटिटी अलग होती है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे एसीसी का फ्यूचर्स अगर आप लोगे तो उसकी क्वांटिटी डिसाइड है 400 ही रहेगी। कोई भी आप ले लो, अगर आप एशियन पेंट का फ्यूचर लोगे क्वांटिटी होगी 600 एंड दिस क्वांटिटी इज प्री डिटरमाइंड। ये यूजुअली चेंज नहीं होती है। सो लेट अस गेट बैक टू व्हाट निफ्टी। 30th अप्रैल कॉन्टैक्ट 75, ये क्वांटिटी फिक्स्ड है। अभी आप ये ज़ीरो द ऑफर्स दिस देखने के लिए कि कितना मार्जिन आपको लगेगा, आपका ब्रोकर ऑफर करता है नहीं मुझे पता नहीं, बट आप यहाँ पे आके देख सकते हो, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगी। तो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको बाय करने के लिए निफ्टी पे, जिसकी वैल्यू है 6,75,000, 9,000 उसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 75 क्वांटिटी है, तो वैल्यू है 6,75,000। इतने अमाउंट का आपको बाइंग करने के लिए ब्रोकर के पास 1.5 लाख मार्जिन रखना पड़ेगा। ओके, अभी एक देखते हैं, अपन एग्जांपल लेते हैं किसी स्टॉक का। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ रिलायंस। रिलायंस की क्वांटिटी है 500, उसकी प्राइस है रिलायंस की 1227, 1230 गिनते हैं फॉर sake of calculating, तो दैट इज 1230 इंटू 500, 6,15,000 इसकी वैल्यू होगी इस कॉन्ट्रैक्ट की। मतलब आप 6,15,000 का सामान खरीद रहे हो या बेच रहे हो, और उसके लिए आपको आपके ब्रोकर के पास कुछ पैसा जमा रखना है, 2 लाख रुपये। ये मार्जिन्स फिलहाल बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी थोड़े हाई है, यूजुअली इतने नहीं रहते हैं, फिलहाल पकड़ के चलो। एक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिसकी वैल्यू 6,75,000 है, आपको ऑलमोस्ट 1.5 लाख मार्जिन रखना पड़ेगा आपके ब्रोकर के पास। मतलब आपके जेब में अगर 1.5 लाख है तो आप लोग 6,75,000 का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकते हो। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ फ्यूचर। मतलब अगर आप श्योर हो कि अगले 2 दिन में प्राइस बढ़ने वाली है, मार्केट बढ़ने वाला है, आपके पास पैसे कम है, मगर आपको ये पोजीशन खेलना है, ये व्यू अप्लाई करना है, तो आप वो फ्यूचर से कर सकते हो। बहुत सिग्निफिकेंट लेवरेज मिलता है फ्यूचर्स में। अब ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट कैसे होता है? जैसे आपको मैंने पहले बताया कि फ्यूचर्स एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय समथिंग एट अ पर्टिकुलर डेट फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस, irrespective of what is the price in market. Similarly, अब इस कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट कैसे होगा? सेटलमेंट करने के लिए आपको एक्सपायरी तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसका सेटलमेंट ऑलमोस्ट हर दिन अपने आप हो जाएगा। अब ये कैसे होगा? फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लो आपने 14 अप्रैल को निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा 9,000 रुपये, या आपने 12 बजे कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, शाम तक उसकी प्राइस हुई 8,900। 3:30 बजे तक आपने सोचा कि हम कैरी करोगे, आज नहीं तो कल भाव पड़ेगा उसका।
तो जैसे ही उसकी क्लोजिंग प्राइस होती है सपोज 8,900 पे मार्केट बंद हो गया, तो उस दिन क्या होगा कि ये जो डिफरेंस है 8,900 और 9,000 में, जो 100 रुपये का डिफरेंस है, ये 100 रुपये इंटू 75 जो क्वांटिटी है, दैट इज 7,500 रुपये आपके ब्रोकरेज अकाउंट में से जो आपने मार्जिन डिपॉजिट किया है आपके ब्रोकर के पास, उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे. 7,500 would be deducted from your broker's account, sorry, your account with your broker, the margin that you have placed in that account. Your margin is reduced by 7,500. Now, for example, you carry that contract on 15th April, the price closes at 9,100. अब क्या होगा? Now, at the end of the day, broker will calculate this difference 8,900 and 9,100, दोनों के बीच का डिफरेंस 200 रुपये इंटू 75, वो 15,000 आपके अकाउंट में जमा कर देगा. बैंक अकाउंट नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट, मार्जिन में जमा करेगा, आपके मार्जिन में ऐड करेगा. 8,900 क्यों, 9,000 क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ से यहाँ का सेटलमेंट हो चुका है. अब सेटलमेंट है इसका 8,900 से 9,100 का. फिर दूसरे दिन मार्केट खुलता है, फिर भाव 9,000 पे आता है. फिर बोलते हो भैया इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, निकल जाते कॉन्ट्रैक्ट से, अब 9,000 में बेच देते हो. अब ये जो सेटलमेंट हुई प्राइस है 9,100, उसका और 9,000 का डिफरेंस 100 रुपीज़. 75 is the quantity, 7,500 would be deducted. इस तरह सेटलमेंट keeps happening continuously every day. Every day, whatever is the buying or whatever is the buying or selling, तो जो difference है प्राइस का, that is settled in cash. This is done to ensure that there is no default. अभी मैं अगर 1.5 लाख लेके बैठा हूँ और मैंने निफ्टी शॉर्ट करके रखा है, 9,000 से 10,000 चला गया, 75,000 चले जाते. मैंने दूसरे दिन बोला कि भाई मैं नहीं देता हूँ 75,000, तो जो लॉन्ग था, जो मेरी अपोजिट पार्टी थी जिसने फ्यूचर खरीदा होगा, उसको कहाँ से देंगे 75,000? इसीलिए जैसे जैसे रोज़ प्राइस बढ़ती जाएगी, मेरे मार्जिन से वो कम होता जाएगा अमाउंट, और हर रोज़ सेटलमेंट के वक्त M2M सेटलमेंट बोलते हैं उसको, मार्क टू मार्केट, वो अमाउंट जो लॉन्ग पोजीशन है, जो जिसने बाय किया हुआ है, उसके अकाउंट में जाता रहेगा. So this is how it is settled every day at the end of the day. अब एक और कंसेप्ट है मार्जिन कॉल. ये मार्जिन कॉल क्या होता है? मार्जिन कॉल ये होता है कि सपोज आपके पास अकाउंट में 1.5 लाख रुपए है और आपको एक निफ्टी का फ्यूचर खरीदना है. उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट सपोज आपके ब्रोकर के पास है 1,40,000 रुपये. तो आप वो 1,40,000 मार्जिन के तौर पर रखते हो बोले तो आपको किसी को देने नहीं है, वो बस ब्लॉक हो जाते हैं आपके अकाउंट में, ब्रोकरेज अकाउंट में, और आप ये निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो. अब सपोज उसकी प्राइस गिर गई और 8,800 हो गई. सो एट 8,800 यू आर मेकिंग 200 रुपीज़ लॉस इंटू 75, 15,000 इज योर लॉस. अब ये जो 1,40,000 है ना, यह अमाउंट फिक्स्ड है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये तो ब्रोकर के पास रखना ही है. अगर आपका ब्रोकर ये देख रहा है कि आपके पास 15,000 नुकसान है ऑलरेडी, अब अगर मार्केट बंद हो गया और कल सुबह आपने वो 15,000 नहीं जमा किए, तो मैं सामने वाली पार्टी को पैसे कैसे दूँ? आप बाय साइड में हो तो जो सेल साइड में उसको पैसे कैसे दूँ? इसीलिए ब्रोकर क्या करता है, वो इसको तो कांस्टेंट रहने देगा, ये 1,40,000 तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो इसको प्लस कर देता है. 1,40,000 प्लस 15,000, 1,55,000. मगर आपके अकाउंट में कितने हैं? 1,50,000. So now what would the broker would do is he would initiate a margin call. That is, you will be required to deposit
that additional 5,000 rupees as a margin to keep your positions open. अगर आपको ऐसा लगता है कि कल को भाव बढ़ेगा निफ्टी का, आप खरीद के बैठे हो 9,000 में, 8,800 चल रहा है, आप होपफुल हो कि भाव बढ़ेगा, प्राइसेस वुड इंक्रीज, what you would do is you have to pay your broker extra 5,000 so that your position is maintained. If you don't pay it, your broker will sell your contract at whatever is the market price. सेटलमेंट कर लेगा वो, और बाकी का आपका मार्जिन फ्री हो जाएगा. 15,000 आपके मार्जिन से डिडक्ट होकर आपका बाकी का मार्जिन फ्री हो जाएगा. Now what is the difference between settlement and margin call? अभी मैंने आपको बताया कि settlement is happening on the end of the day and margin call में तो ये लोग दिन के बीच में से ही पैसा मंगा रहे हैं. Well, settlement is cash settlement. असली में कैश आपके अकाउंट में आता है और जाता है. और मार्जिन कॉल क्या है? वो एक टेंटेटिव अमाउंट है जो ब्रोकर कैलकुलेट करते रहता है कि इतना पैसा चाहिए ये पोजीशन चालू रखने के लिए, क्योंकि वो आपको लीवरेज दे रहा है ना, और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आपको लीवरेज दे रहा है. एक एक पॉइंट का टिक आपके 75 पॉइंट कम ज़्यादा कर रहे हैं. 1 रुपये difference of 75 rupees. So broker has to be alert when he thinks that probably your losses are increasing and you may not oblige. So he asks for more margin. With margin there is a safety कि बाबा whatever happens, profit or loss, you will oblige. Once you oblige, market can your broker can take that money from you and pay it to the person who has made money, who has made profit. So this margin call is done to avoid default risk. Okay, settlement is the actual settlement of cash. Now this is the most important quote जो शायद आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार. Quote by legendary Mr. Buffett that derivatives are weapons of mass destruction. ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि they are 2008 का अगर आपको पता होगा फाइनेंशियल क्राइसिस, तो इट वाज मोस्टली कॉज्ड बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव्स. सो derivatives are weapons of mass destruction, agreed, but there is a but in between. Derivatives are also zero sum game. एक जीतता है, एक हारता है, एक कमाता है, गवाता है, एक का प्रॉफिट, एक का लॉस. One makes money, one loses money. When you buy a future contract, that means someone has sold you that future contract. If you are buying a Nifty at 9,000, Nifty future at 9,000, that is you are long on Nifty future at 9,000, that means someone is short at 9,000. किसी ने तो आपको contract बेचा होगा ना. So if you make money, he loses money. If he loses money, you make money. And vice versa. आपको 10,000 का घाटा तो उसका 10,000 फायदा. इट इज अ जीरो सम गेम. यहाँ पे पैसा बनता नहीं कहीं से. एक हारेगा तो एक जीतेगा ही, कंपल्सरी. अब आपको एक फैक्ट बता दो कि 99% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स लूज मनी. दे आर मेकिंग लॉसेस इन डेरिवेटिव्स. Now if this 99% are making losses, then what? Then the other 1%, all this money that is lost by this 99% people combined, is made by just 1% of traders. सोचो, ये derivatives are weapons of mass destruction because masses lose money. बहुत लोगों को losses हो गए derivatives. मगर ये सारे losses किसी के लिए profit है. Someone is making all that money. So आपको कोशिश करनी है कि आप ये 1% में रहो. मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है. अब अगर आप आपका टर्मिनल खोलते हो और आप सोचते हो कि चलो आज से भाई मुझको बाइंग सेलिंग करना है,
लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ निफ्टी ओनली। तो निफ्टी का करंट प्राइस है 9266 और निफ्टी फ्यूचर का प्राइस है 9331। बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्यों होता है? ये डिफरेंस इसलिए होता है, ये जो डिफरेंस है फ्यूचर प्राइस और निफ्टी के प्राइस में 9330 और 9266 66 में, दिस इज कॉल्ड बेसिस। ओके, बेसिस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस। 9266 माइनस 9331 जो भी अमाउंट होगी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बेसिस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट प्राइस। ये फॉर्मूला भूल जाओ, स्पॉट माइनस फ्यूचर थोड़ा टेक्निकल है। ये बेसिस आपको ट्रेडिंग में बहुत काम में आएगा, हम लोग वो बाद में देखेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल अपन कंसिडर करते हैं ये स्पॉट माइनस फ्यूचर जो भी डिफरेंस है, मोस्टली इस फ्यूचर की प्राइस ज़्यादा होगी स्पॉट से। ये जो डिफरेंस है ये क्यों है? पहली चीज़, ये डिफरेंस सेंटिमेंट दिखाता है कि लोगों का क्या सेंटिमेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट पे, उस अंडरलाइन पे। निफ्टी का फ्यूचर तो निफ्टी का सेंटिमेंट क्या है, गोल्ड का फ्यूचर तो गोल्ड का सेंटिमेंट क्या है, ट्रेडर्स का। ये चीज़ आपको इस बेसिस पे से पता चलेगी। सेकेंड चीज़, आप इसको एक तरह से इंटरेस्ट कंसिडर कर सकते हो। यू कैन कंसिडर इट एज ए इंटरेस्ट। वाई इंटरेस्ट? बिकॉज 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए रख के आप 6.25 लाख रुपए की चीज़ खरीद रहे हो या बेच रहे हो, वो एक्स्ट्रा मार्जिन कहाँ से है? कहीं से तो आएगा ना। उसको फॉर नाउ कंसिडर इट एज अ इंटरेस्ट। अब इसका एक घाटा ये है, ये जो प्राइस का डिफरेंस है ना, ये प्राइस का डिफरेंस अभी कितना भी है, ये एक्सपायरी डे को 0 हो जाएगा। ओके, ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी दैट इज 30th अप्रैल को निफ्टी की जो प्राइस होगी वही प्राइस निफ्टी फ्यूचर्स की होगी। द फ्यूचर प्राइस विल बी इक्वल टू स्पॉट प्राइस ऑन निफ्टी और एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी। फॉर एग्जाम्पल 1st of April में आप मार्केट में आते हो और आप देखते हो अपना ब्रोकर का टर्मिनल खोल के निफ्टी की प्राइस चल रही है 9000, निफ्टी फ्यूचर की प्राइस चल रही है 9030 रुपये। आप वो फ्यूचर खरीद लेते हो, यू बाई इट एट 9030। आपने 1 महीना अपना टर्मिनल बंद कर दिया। आप आए 1 महीने बाद, वापस टर्मिनल खोलते देखते हो निफ्टी वापस वही का वही, 9000 का 9000। मगर एक चीज़ आप देखोगे कि आपका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो 9030 से घट के 9000 हो गया, बिकॉज ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस। मतलब मार्केट कहीं हिला नहीं, मगर फिर भी आपने 30 रुपये का घाटा कर दिया। 30 × 75 जो भी होगा वो। सो ये यूजुअली जो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उनके लिए ये थोड़ा लॉस होता है। शॉर्ट पोजीशंस को यही फ़ायदा होता है, बिकॉज जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट बेचा होगा 9030 में उस दिन, उसके लिए अभी ये 30 रुपये फ़ायदा है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 9000 हो चुकी है, भले निफ्टी ना हिलाओ। सो दिस प्रॉफिट एंड लॉस इज बिकॉज ऑफ बेसिस। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कन्वर्ज होते रहता है टू 0। फ्यूचर प्राइस स्लोली कम्स टुवर्ड्स द स्पॉट प्राइस। ये डिफरेंस मोस्टली पॉजिटिव रहेगा, किसी किसी सिनेरियो में नेगेटिव रहता है, बट वो सब चीज़ हम लोग बाद में कवर करेंगे। एंड या एक और चीज़ है सेटलमेंट के बारे में जो मुझे आपको शायद अभी ऐड करना ज़रूरी है। अगर आप स्टॉक्स लेते हो तो वो फिजिकली सेटल होते हैं, स्टॉक्स फ्यूचर। और अगर आप इंडेक्स फ्यूचर लेते हो या कमोडिटी फ्यूचर लेते हो
वो कैश में सेटल होता है। अब कैश और फिजिकल का डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश सेटलमेंट एंड फ्यूचर सेटलमेंट? In cash settlement, whatever is the difference of price, if you are holding, if you bought a future at 9,000 और आपने वो एक्सपायरी तक रखा आपके पास, ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी इफ द प्राइस इज 8,900, तो ये जो डिफरेंस है 100 रुपीज का, इट इज सेटल्ड इन कैश। आपका यहाँ पे 100 रुपीज लॉस है, तो आपको -100 इंटू 75 7,500 देना है। दिस इज हाउ इट इज सेटल्ड। मगर स्टॉक्स में रिसेंटली फिजिकल सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है। फिजिकल सेटलमेंट मतलब अगर आपके पास रिलायंस का फ्यूचर है जो आपने बाय किया हुआ है 1200 रुपये में, ये रिलायंस ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी उसकी मार्केट प्राइस है 1300 रुपये। अब प्रॉब्लम क्या है कि बिकॉज इट इज अ फिजिकली सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये जो 100 रुपये का डिफरेंस है जो आप कमा रहे हो 500 क्वांटिटी में, ये डिफरेंस आपको मिलने नहीं वाला है। आई मीन मिलेगा, बट डायरेक्टली आपको ये अमाउंट नहीं मिलेगा। 500 इंटू 100 50,000 रुपये। इसका सेटलमेंट कैसे होगा कि आपको 1200 इंटू 500 6 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे और 6 लाख के आपको शेयर्स दिए जाएंगे। दैट इज 1200 रिलायंस के शेयर्स आपको उसके बदले दिए जाएंगे। आपके अकाउंट में 1200 रिलायंस के शेयर्स आएंगे, ऊपर के 50,000 रुपये नहीं। उन शेयर्स की वैल्यू 1300 रुपये है जो आपको 1200 में मिले। इसलिए सेटलमेंट के दिनों के पास आपको ऑलमोस्ट 100% मार्जिन रखना पड़ता है। 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो 6 लाख के आसपास रखना पड़ेगा। सेटलमेंट के नज़दीक के जो 3 दिन होते हैं, बोलो तो 30 अप्रैल को अगर सेटलमेंट है तो 27, 28, 29 के आसपास आपको ये इतना ज़्यादा मार्जिन रखना पड़ता है स्टॉक फ्यूचर्स में। इस पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तो चलेगा, सेटलमेंट क्या है कैसा है। सिर्फ इतना याद रखो कि अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो तो आपको लास्ट के 3 दिनों में जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने जाता है तभी आपको मार्जिन ज़्यादा लगेगा। आपको ज़्यादा नहीं पे करना है तो आप आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करो और अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लो या बेच लो, जो भी आपकी पोजीशन है। अगर मे अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड कर रहे हो, आप वो चेंज करके मे कॉन्ट्रैक्ट कर लो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू वेल। ठीक से समझा पाया मैं आपको व्हाट इज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू हैव गॉट एनी डाउट्स यू कैन रीच मी आउट ऑन ट्विटर। This is my Twitter ID. This is my email ID. You have got any question related to share market, any question related to bonds, finances, you can email it to me or you can reach me out on a Twitter. Next series में हम next video में हम लोग आपका सबका favorite options cover करने वाले हैं. So goodbye for the meanwhile and stay home, stay safe. Thank you.